very useful tips for the teachers, I must say. And The coming only from a thing person, that I am not uh, suddenly when I started this one, I'm connected with two apparatus with two gadgets, but suddenly uh-huh. electricity gone. तो फिर वही हुआ कि Oh, तो मैं अपने मोबाइल से ही अभी जुड़ा हुआ हूँ और हमारा अच्छा, लैपटॉप जो है अब डेड हाँ, हो गया है, तो अब अगर लाइट आती है तो फिर देख पाएंगे प्रेजेंटेशन पीपीटी, अदरवाइज मैं भेज दूंगा, दोनों ही अरे प्रेजेंटेशन आपको भेज दूंगा, है ना, आपको ऐसा करिए। जरूरत नहीं है पीपीटी की, बढ़िया। ओके और ओके। इंटरेस्टिंग लेक्चर, हाँ लेक्चर होगा, बट participants have to remember what sir said yesterday. Use it for making your teaching and communication skills better, not as your own professional presentation. And communication skills coming from somebody who is a creative writer himself. आप अगर देखिए आनंद वर्धन जी का प्रोफाइल, तो कविता संग्रह और कहानी संग्रह, और सर उपन्यास अभी नहीं लिखा शायद आपने। इस साल शायद आ जाए, चल रहा है काम। चलिए, बहुत दुआ है जी हमारी, जी बहुत दुआ है जी। जल्दी आ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। So coming from somebody who is trying हाँ his the ये power वो of अभी his नहीं है जी। क्रिएटिव राइटिंग में जब कोई आता है तो उसका मतलब होता है कि बहुत पैशन है उसके अंदर किसी हाँ बात को लेकर। हाँ, ठीक और जी उसे जी कहे बिना रह नहीं पा रहा है, इसलिए वो बड़ी बड़ी अहम बात होती है दरअसल। जी 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 मैडम। तो सर मेरे ख्याल से अबाउट 70 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं। I think everyone is eager to hear you, and it's like yesterday. We expect a very engaging, riveting session with you. So, participants, please join me in welcoming Professor Anand Vardhan Sharma, Director MMTTC at BHU, with his vast experience to speak to you today on preparing a lecture, how to prepare a lecture. So, it's over to you, sir. Good ओके morning, थैंक Reena यू। ji. Now, everyone else will be on mute, please. And if you have a question, we can, yeah, if we have a question, and देखिए क्या इसमें Okay, so should I start now? Ji, sir, यस सर। I think, Yes, sir. please. Good morning, sir. So sir. thank you गुड very मॉर्निंग much सर। again to Professor Paita ji for inviting me here to talk with you, to share my experiences and my thoughts on this virtual platform. My Yesterday, pleasure, sir. yesterday I talked about communication skill, and you may say that today's lecture is the next part of that one, because I also wanted to discuss something about the lecture, how we should prepare a lecture. Definitely, you all are very much competent, and properly you are doing your work while going in your classroom. Before that, a lot of hard work you do, and especially when we go to deliver any lecture, any kind of lecture, even in classroom, either in classroom or somewhere else, with before any other group, like in any seminar or in symposium or workshop. In that case, communication is also important, but it is also an art to prepare a lecture for the particular target group, because target groups are always different. जो लक्ष्य समूह होता है वो हमेशा अलग अलग होता है, एक सा नहीं होता है। कहीं एक लक्ष्य समूह है, कहीं दूसरे तरह का लक्ष्य समूह है। और ऐसे में जब हम लेक्चर की बात करते हैं तो दरअसल हम ये भी देखते हैं कि व्याख्यान की भूमिका क्या रही है और कब से रही है। मोटे तौर पे मित्रों अगर हम पाएं तो अनफॉर्चुनेटली अगेन आई एम रियली disappointed with here situation. The electricity is not
suddenly it is cut. Otherwise मैंने सोचा था कि आज आप हमारे पावर पॉइंट को देख पाएंगे, क्योंकि there are some very nice pictures also. जब हम पीपीटी तैयार करते हैं तो वो भी अपने आप में एक कला होती है, और इसीलिए कुछ पीपीटी बड़े इंटरेस्टिंग होती हैं, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होती. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पीपीटी आपको बहुत अच्छी लगती, लेकिन फिर भी अगर आप देखते तो शायद इसके साथ साथ आप ये भी पाते कि कैसे एक पीपीटी तैयार करनी चाहिए, क्या मुख्य बातें हैं. मोटे तौर पर एक चीज आप सबसे मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि व्हेन वी प्रिपेयर एनी लेक्चर एंड इफ वी टेक एनी हेल्प of PowerPoint presentation slides, then we should also keep in mind that what is the process of preparing this PowerPoint presentation. Generally, sometimes we see that there are too much material in one slide, and it is almost the viewer is unable to read it. तो जब आप उसे देख ही नहीं पाएंगे, पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो संभव नहीं होता है कि वो आपके काम की हो. ऐसे में there are some rules to prepare PowerPoint, and the rule is that generally there should not be more than 7 lines in one slide and 7 words in one line. Means the rule is 7 into 7, not more than 49 words. It is a general rule, but there may be 7 or 8 or 9, but not more than that lines in one slide. And in the same way, there should not be more than one in one line, 8 or 9 words or 10 words. Means in that way, you can vary between 50 to 70 words, but not more than that. Otherwise, it will be really difficult for others to read it. तो इस बात का ध्यान रखिए कि 7 into 7 का जो रूल है उसका फॉलो करेंगे, उसका अगर पालन करेंगे तो शायद बेहतर ढंग से आप अपनी स्लाइड भी तैयार कर पाएंगे. और दूसरा इसमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, और वो है कि अगर आप जो कुछ बताने जा रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उससे जुड़ी कोई तस्वीर हो, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ फोटो, it will help a lot, because the visual things, any photograph, as I told you yesterday, it plays much more role. It is more effective than the words, because we can see it also. And that is the reason that when you go to see any movie, you remember the story, because it is in your long-term memory. वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ गई है, इसलिए वो आप ज्यादा आसानी से उसे देख पा रहे हैं, याद कर पा रहे हैं. तो ये तो हुई पावर पॉइंट की बात की तैयार करते समय हमें कलरफुल पिक्चर्स हो या किसी भी तरह की पिक्चर्स हो या कार्टून्स हो, इनको आप व्यवहार में लाएं, इस्तेमाल में लाएं, तो वो आपका जो आपकी प्रस्तुति है उसको और बेहतर बनाएगी और दूसरों का ध्यान भी आकर्षित करेगी. विद्यार्थी ज्यादा बेहतर ढंग से आपके द्वारा कही गई बातों को याद कर पाएंगे. बहरहाल सबसे पहले हम ये जाने कि आखिर लेक्चर है क्या. व्हाट इज लेक्चर? In fact, lectures have been used since ancient times as a convenient method of communicating information to a large number of people. एक बड़े समूह को कुछ सूचनाएं देने के लिए, कुछ बताने के लिए इसका व्यवहार बहुत पहले से किया जाता रहा है. एंशियंट टाइम से, प्राचीन काल से किया जाता रहा है. ये कोई ऐसी नई बात नहीं है जिसको आप पहली बार देख रहे हो, पहली बार कर रहे हो. ये एक बहुत पुराने समय से चली आ रही प्रक्रिया है. तो एक बड़ा समूह होता है, उसके सामने जब कोई व्यक्ति अपनी बात रखता है तो वो लेक्चर के माध्यम से ही रखता है. अगेन इट इज बीइंग यूज्ड टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. यानी केवल सूचनाएं नहीं है वहां, बल्कि ज्ञान भी है, दोनों चीजें. So this is the time is of
इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन, सूचना के विस्फोट का समय है। इतनी सारी सूचनाएं हैं हमारे पास. You just put one word in Google platform, and what you will find, there are hundreds of windows are opening, even more than that, perhaps millions sometimes, because the word which you want to know about that, and so many people posted, uploaded several things, but it is not necessary that every time you will get the actual information or right information. So what you have to do? The teacher who has a lot of informations, he or she transforms that information into the knowledge. This is the work of a teacher. वो उन सूचनाओं को ज्ञान में परिवर्तित करने का काम करता है. सूचनाएं तो बहुत सारी हैं, और अगर सूचनाएं ही सब कुछ होती तो फिर अध्यापक की जरूरत क्या थी? विद्यार्थी उनको ही पढ़ करके काम चला लेता. इसीलिए कहा जाता है कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ एनी टीचर एंड हिज वर्क और हर वर्क. अगर वो ऐसा करता है तो वो एक सफल अध्यापक होगा. अगेन अ लेक्चर गिव्स स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दैट इज यूजुअली टास्क, जॉब और ऑक्यूपेशन रिलेटेड. जो कुछ व्याख्यान के तौर पर कहा जाता है वो एक विशेष सूचना होती है, विशेष प्रकार का ज्ञान होता है, और वो संबद्ध किससे होता है? आपके काम से, आपके व्यवसाय से, जो कुछ आप कर रहे हैं उस गतिविधि से. जैसे हम लोग कक्षा में जाते हैं तो जिस विषय के हम अध्यापक हैं उस विषय के बारे में लेक्चर देते हैं, तो वो लेक्चर उस विषय से संबंधित है. आप विज्ञान के हैं और आप अचानक संगीत की बात करने लगेंगे तो उसका रिलेवेंस वहां नहीं होगा. हाँ, अगर कोई इंटर रिलेशनशिप है बिटवीन साइंस एंड म्यूजिक, देन इट विल बी ओके. Or if you establish some kind of interrelationship between two subjects, then it's fine. तो हमेशा तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये सही बात है कि अनेक बार ऐसा भी होता है. तब भी वो टास्क से, जॉब से और आपके व्यवसाय से संबद्ध कहीं ना कहीं होगा. एज आई एम गिविंग यू अ लेक्चर हियर अबाउट हाउ टू प्रिपेयर अ lecture, preparing a lecture. So it is directly related with your job, with your occupation. And listening it, if you follow what I will tell you, then it will be useful for you. Many of the things which I am going to tell you, you are already doing. But I synchronize the things to repeat again and again. And repetition is very important thing for a teacher, for teaching learning process. If you do not repeat, it means we are not following the actual path, and in that way we may miss several things. It may be possible. तो हो सकता है हम कुछ चीजें भूल जाएं अगर हम बार बार दोहराए नहीं, पुनरावृत्ति न हो तो रिपीटिशन इज इंपॉर्टेंट. रिपीटिशन को की जब हम बात करते हैं तो मुझे एक अमीर खुसरो की कुछ पंक्तियां याद आती हैं. आई थिंक यू नो ऑल about Amir Khusro. Who was Amir Khusro? Amir Khusro was a great poet who wrote in Arabic, Persian, and also in Hindi, खड़ी बोली हिंदी. So बहुत सारी पहेलियां उन्होंने लिखी, बहुत सारी मुकरियां लिखी, कविताएं लिखी, गीत लिखे, भजन लिखे. तो पहेली जो होती है उसमें एक क्वेश्चन होता है, यू ऑल नो, एंड ऑल्सो देयर इज एन आंसर. So the poet or the person, he or she speaks something, a question, in a humorous way or in an interesting way. And the person who is listening, he is bound to give an answer. It is not necessary that all the time you give correct answer. But generally, there is clue in that question also. Answer is hidden there.
and you have heard, I think, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा. आपने शायद सुना होगा बहुत सारे लोगों ने. जी थाल सभी के सिर पे फिरे, मोती उससे एक न गिरे. इसका क्या उत्तर है? आसमान Can से। somebody- आसमान. इट इज वेरी इजी. एक थाल मोती से भरा, जो मोती है वो उसमें तारे हैं और वो उल्टा रखा हुआ है, लेकिन उसमें से कोई मोती नीचे नहीं गिर रहा है. अब इसको अगर हम इस तरीके से देखें कि है तो ये एक पहेली, इसका उत्तर भी आसमान है, लेकिन एक क्यूरियोसिटी भी तो है, एक जिज्ञासा भी है. देयर इज अ क्यूरियोसिटी. somebody can ask or somebody can think why these pearls are not coming down. What is the reason? Then it is a space science, and he or she can think about it, he or she can research about it, and people are researching. Like, you also remember one very famous. Okay, first I will tell about the repetition, what he said, Amir Khusro. Then about curiosity I'll discuss. So Amir Khusro, and also he wrote Mukris. So in Paheli there is one question and one answer, and in Mukri there are several questions, but the answer is same for all the questions. He wrote very famous Mukri, and there are 4 questions. The Mukri is घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, किताब भूली क्यों. There are 4 questions, and answer is same. फेरा न था। फेरा मेरा ना नहीं था, था. फेरा नहीं गया. So it is very important. घोड़ा अड़ा क्यों? क्योंकि उसे फेरा नहीं गया, उसे चलाया नहीं गया. The horse is stuck because nobody did the exercise with that horse. So again and again we have to do this thing. And then if we are making a practice, then he will move. Otherwise he will stop at one place. Then another one, pan sada kyun? You know, pan, the betel leaf. Why it is rotten? Because there is also a process. If you want to use it, you have also seen in the shop, pan shop, that every time the pan wala turns again and again. If you will not turn that betel leaf, it will be rotten. तो घोड़ा आड़ा क्यों, फेरा नहीं गया. पान सड़ा क्यों, फेरा नहीं गया. रोटी जली क्यों? If you put the bread and if you will not turn, तो जल जाएगी. It will vanish. It will vanish the taste. And the 4th one, which is important for us, किताब भूली क्यों? Why we forgot the book? Because we didn't turn the pages of the book again and again. हमने उसे बार बार फेरा नहीं. And that is the reason then when we go to our class, before that we generally do it. What you have to teach, you just turn the pages so that the important point should not be forgotten. जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो भूले नहीं आप, उनको आप जरूर पढ़ाएं. तो अमीर खुसरो इस दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण बातें उन्होंने जो कही हैं वो हम लोगों के लिए उपयोगी है. मोहम्मद जी ने हाथ क्यों उठा रखा है? अभी तो मैंने नहीं कहा कि कोई प्रश्न कीजिए. क्या कोई विशेष जिज्ञासा है? डू यू हैव एनी क्वेश्चन मोहम्मद जी? यू हैव रेज्ड योर हैंड. इफ नॉट, प्लीज अपना हाथ आप नीचे कर लें, और कोई जिज्ञासा हो तो बताएं, क्योंकि आपने बीच में हाथ उठाया हुआ है. मेरी बात सुन रहे हैं मिस्टर मोहम्मद? I don't know whether he is only connected or even he is listening. कोई जवाब नहीं है. चलिए, गलती से ये भी, गलती से टच हो गया उसे. लेकिन वो सुन भी नहीं रहे हैं, तो गलती से उसको सीधा भी नहीं कर रहे हैं ना. यस सर. He is even not listening anything. Otherwise वो वहां से हटा देते. तो देखिए, सर ये भी पहेली है सर. ये सारा जो है ज्ञान आपको जैसे जैसे आप बुजुर्ग होते जाएंगे ना, ये आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्लास में कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है.
कौन ध्यान दे करके पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है। इसीलिए आप खट से अपनी कक्षा में कहते हैं, अरे भाई फला दिवाकर जी आप वहां बैठे हुए हैं तो क्यों नहीं सुन रहे हैं। और पीछे का बच्चा अगर उसका नाम वही है जो मैंने कहा है, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ दिवाकर जी, सर एनी यस एनीबडी सर। है ना, तो वो तुरंत कहता है नहीं नहीं सर, आई एम अटेंटिव, आई एम अटेंटिव, मैं सुन रहा हूँ। तो आपको पता चल जाता है। और बच्चे कभी कभी पूछते हैं कि सर आपको पता कैसे चल जाता है कि हम नहीं पढ़ रहे हैं या मेरा ध्यान कहीं और लगा हुआ है। सो इट्स ऑल काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस ना, बहुत सारी चीजें अनुभव आपको बता देती हैं। आप भी ये करते होंगे, हम लोग को भी पता चल जाता है कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। बहरहाल, तो फिलहाल मोहम्मद जी स्क्रीन से तो दिख नहीं रहे हैं, तो जो भी। तो बात जो मैंने अमीर खुसरो की कही, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। इसलिए लेक्चर तैयार करते समय हमें ये भी ध्यान रखना है कि पलटा नहीं है। मैं क्यूरियोसिटी की बात कर रहा था, तो जैसे इन्होंने कहा, जो मैंने पहले पहली बताई, द सेम क्यूरियोसिटी इज ऑल्सो रिलेटेड विद सो मेनी थिंग्स। हम लोगों ने बचपन में एक बड़ी मजेदार कविता पढ़ी, आप सब ने पढ़ी है, आप सबको याद है। अगर मैं कहूँ तो शायद कोई भी इस मंच पर जुड़ा ऐसा नहीं होगा जो उसके बारे में ना बता पाए। दैट इज इन इंग्लिश, द ललाबाई, द poem which you remember even today, and that is also related to the space science. Which poem is this? Please tell. Prachi ji, बताइए। चंदा मामा। That is in English. I told you that is in English. ट्विंकल 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 स्टार। Twinkle twinkle little. Twinkle, little star. Yes, yes, yes. So is there any curiosity in Twinkle Twinkle? क्या उसमें कोई जिज्ञासा है, या हम लोगों ने ऐसे ही उसको पढ़ लिया, याद कर लिया? यस सर, हमने तो याद किया इसलिए क्योंकि उसकी जो भाषा थी, उसके जो लिरिक्स थे, उसमें जो रिदम थी, वो अच्छी लगी बच्चे को। लेकिन बड़े लोग जब उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उनके लिए तो बहुत सारी क्यूरियोसिटी है ना। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ये एक क्यूरियोसिटी है बच्चे की कि क्या है। अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, वही बात जो अमीर खुसरो कह रहे हैं, इतने ऊपर है और वो थाली से कुछ गिर नहीं रहा है। अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक डायमंड, इन्होंने पर्ल कहा, उन्होंने डायमंड कहा। देखिए कितनी सिमिलरिटी है। अब आप कभी अमीर खुसरो को पढ़ाने जाएं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो क्यूरियोसिटी है कि वो अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई विच इज नॉट कमिंग डाउन, जो नीचे नहीं आ रहा है, व्हाट आर दे, ये क्या, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सी चीज है, ये वंडर है ना। और नासा इसी पे काम कर रहा है, हमारे यहाँ का स्पेस सेंटर इसी पे काम कर रहा है। पूरी दुनिया के सारे लोग करोड़ों अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं, अपने सारे रिसोर्सेस को लगा रहे हैं टू सॉल्व दिस क्यूरियोसिटी। हाउ आई वंडर, ये वंडर है कौन सा। कहने को तो कविता है, लेकिन यह कविता भी हमें कहीं ना कहीं एक प्रेरणा दे रही है, इंस्पायर कर रही है। तो इस तरह से चीजों को कुछ नए ढंग से देखने की जरूरत है और एक्सप्रेस करने की जरूरत है अपनी लेक्चर में। तब हम चीजों को, जिसको हम कह रहे हैं ना कि जो इनोवेशन की बात करिए, नवाचार की बात करिए, ये सब नवाचारी चीज है। तो लेक्चर का काम आपके पूरे के पूरे जॉब से रिलेटेड है। देन द लिसनर्स नीड नॉलेज टू एनहेंस देयर विजडम। जो लिसनर है, व्हाई यू आर हियर, डेफिनेटली yesterday I also asked the same thing, why you are here. If I ask to you, why you attended this program, what is the reason? Honestly, please tell, what is the reason why you attended this program? Mandatory requirement for For promotion, Yes. sir. So the first thing is for promotion you have to attend. Okay, very honest answer. But with this, you are also learning a lot of things. And when you will get the certificate, when you will learn, when you will attend the class, when you will definitely ask the question, when you have curiosity, when you want to enhance your wisdom,
आप जब अपने पूरे ज्ञान को आगे बढ़ाना चाहेंगे तब उस ज्ञान का स्तर बढ़ेगा। तो आप यहाँ लिसनर हैं, इसलिए यहाँ भूमिका फिर हो जाती है व्याख्यान की। एंड द ट्रेनीज नीड द इंफॉर्मेशन फॉर देयर वर्क एंड टू एनेबल देम टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज प्रॉपरली, करेक्टली। जो ट्रेनी है वो अपने काम को ठीक से करे, कर सके, ये सोच करके वो किसी भी प्रशिक्षण में आता है, कोई भी व्याख्यान सुनता है। ये काम का नहीं होगा तो आप बंद कर देंगे, या कनेक्ट रहेंगे कि आपकी अटेंडेंस बनी रहे और बाकी आप अपना दूसरा काम करते रहेंगे। किचन में जाके चाय भी बना सकते हैं, घर में अगर है तो घर के दूसरे सदस्यों को भी लाभ होगा थोड़ा, कि आजकल सर घर में है, मैडम घर में है, तो ये सब काम कर रहे हैं। तो वीडियो ऑफ है तो हम लोग को पता ही नहीं चलता है क्या क्या होता है। अभी एक बड़ी मजेदार घटना घटी। बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? No, sir. ओके। नो सर। नो सर, नो No, सर, sir. One of the resource sir. person, बहुत इंटरेस्टिंग है सर। one of the resource person who was teaching information about information communication technology, ICT. So he told me, he said, today what happened with me when I finished my lecture at 5 o'clock, my participants, they started asking questions. बड़ा इंटरेस्टिंग उनका रहा लेक्चर। तो उसी दौरान 5 मिनट बीत गया, 10 मिनट बीत गया, 15 मिनट बीत गया, क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे थे, टाइम वाज ओवर। सडनली one person who unmuted himself, तो पीछे से उनकी पत्नी ने तमाम सारी बातें कहना शुरू किया और वो ये भूल गए कि हमारा माइक म्यूट नहीं है। तो बड़ी जोर से वो नाराज हो रही थी कि आप लोगों को कोई काम धंधा नहीं है, सवेरे से बैठ जाते हैं, इससे अच्छा तो आप चले जाते, कॉलेज में ही रहते, पूरे दिन यहाँ बैठे रहते हैं, मुझे भी काम करना पड़ता है आपके साथ, आप कुछ ना कुछ चाय मांगते रहते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और 5 की जगह 5:15 बज गया है, फिर भी लेक्चरर महोदय को भी, ये स्पीकर को भी भान नहीं है कि आप लोग घर में बैठे हैं, बंद करें अपना लेक्चर। एंड एवरीवन वाज लिसनिंग इट। तो जो रिसोर्स पर्सन थे उन्होंने कहा कि मैडम गलती मेरी नहीं है, आप नाराज हो रही हैं। उन्होंने माइक पे ही कहा कि गलती मेरी नहीं है, आप नाराज तो हो रही हैं, लेकिन सारे लोग प्रश्न कर रहे हैं तो मुझे तो उत्तर देना है, सो आई एम आंसरिंग, आई एम हियर, so this is not my fault. Your husband asked the question. Again that lady said, sir, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इनकी आदत ही ऐसी है, ये ऐसा ही करते हैं, कभी भी कोई काम समय पर खत्म नहीं करते। तो he said, okay, this is your personal matter, I am not saying anything, but if you want I can finish immediately. Then others said, no sir, we want the answer, and other curiosity was also. तो ये भी होता है कई बार कि हम न चाहते हुए भी बहुत सारी बातें पीछे की आती रहती हैं कि वो माइक अनम्यूट हो गया तो बच्चे उसमें खेल रहे हैं, उनकी भी आवाजें आ रही हैं, कोई और बात कर रहा है उसकी भी आवाज आ रही है, यात्रा में है तो फिर कारों की भी आवाज आ रही है, तमाम सारी चीजें हैं। बहुत सारे लोग भ्रमण भी करते रहते हैं इसी बीच, इसका लाभ उठाते हैं। चलिए ठीक है, सबकी अपनी अपनी क्षमता है, अपनी अपनी एबिलिटी है। बाय द वे, हम जब लेक्चर की बात करते हैं, हम जब किसी व्याख्यान की बात करते हैं, ये देखते हैं कि यह क्या होना चाहिए, इसकी विशेषताएं क्या है, तो आरंभ में, इन द वेरी बिगिनिंग, व्हेन वी स्टार्टेड आवर जॉब आल्सो एंड यू आल्सो व्हेन यू स्टार्टेड, सो in the beginning lectures are somewhat like primitive steam engine that is not particularly efficient. जैसे जब इंजन की शुरुआत हुई, रेलवे की शुरुआत हुई, तो कौन से इंजन थे? जो कोयले से चला करते थे, और बिल्कुल आरंभ में, बिगिनिंग में, वो बहुत धीरे धीरे चलते थे, बहुत तेज नहीं चलते थे। बल्कि अगर आप पुरानी तस्वीरों को देखें तो उन इंजन्स के आगे, रेल के आगे पहले घोड़े चला करते ताकि लोग रास्ता साफ कर दें, क्योंकि लोगों के लिए नई चीज थी। उसके बाद धीरे धीरे फिर तकनीक का विकास हुआ,
and the efficiency of that steam engine improved with modern technology. Now what is the situation? We are thinking about the bullet trains, which goes like a bullet. So it is named as bullet train. बुलेट की क्या विशेषता है, गोली की विशेषता क्या है? वो तेजी से निकलती है, बस इतना ही। इसके बाद वाला हिस्सा मत ध्यान में लाइए कि क्या होता है। बुलेट ट्रेन का नाम बुलेट ट्रेन इसलिए नहीं है कि वो किसी को खत्म कर दे, वो अपने ऊपर बैठा के लोगों को तेज गति से भागती है, तो गति के कारण उसका नाम बुलेट हो गया, गोज लाइक बुलेट। और ये हुआ तकनीक के कारण। मतलब तकनीक ने इतना विकास कर लिया कि जो इंजन बिल्कुल धीरे धीरे चलता था, आज वो बहुत तेज गति से दौड़ रहा है। इलेक्ट्रिक इंजन आए, डीजल इंजन आया, और इनके सहयोग से हम लोगों ने आगे आगे बढ़ना शुरू किया। तो लेक्चर्स की भी स्थिति वही है कि यदि हम तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, किसी तरह के एड्स का इस्तेमाल करेंगे, सहयोगी उपकरणों का इस्तेमाल करेंगे, तो लेक्चर और बेहतर हो पाएगा। लेक्चर्स जो है ये that too can become more efficient by use of a better understanding of how people learn and by using various aids. अलग अलग उपकरण जो मैंने आपको बताया उनका इस्तेमाल करने पर वो बेहतर हो सकता है। तो जितने ये व्याख्यान हैं वो ट्रेनिंग पर्पस को अगर ध्यान में रख करके किए गए हैं, तो उनका एक क्लियर फोकस होना चाहिए। देयर शुड बी ए क्लियर फोकस with a specific objective, what you will do after listening this lecture. So it should have a clear focus. What we also do the same in our classroom. We should also have a clear focus, which you already you already do in your class. कि आज हमें ये चैप्टर पढ़ाना है, ये खत्म करना है, इतने बिंदुओं के बारे में बताना है, इसका यहाँ तक का पार्ट आज हम लेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेंगे या नेक्स्ट क्लास में लेंगे। और वो क्लियर फोकस जब होगा तो आप बेहतर ढंग से चीजों को वन बाय वन रख पाएंगे। अब एक डेफिनेशन ये है कि जो स्ट्रेट टॉक और एक्सपोजिशन, possibly using visual or other aids, but without group participation, other than through questions at the conclusion. Normally we do the same. कि आपने पहले तो बता दिया, सारी चीजें अपनी बातें कह दी, and in the last you say that do you have any question, do you have any query? If yes, please ask. And there are queries. वो हैं, ऐसी queries हैं जो विद्यार्थी करते हैं और अंत में करते हैं। तो शुरू में तो आप बोल रहे हैं, लेकिन बाद में सबका पार्टिसिपेशन है। लेकिन एक मजेदार चित्र मुझे मिला जो मैंने इस स्लाइड में लगा रखा है, आप तो नहीं देख पा रहे हैं, और वो चित्र ये है कि एक कंप्यूटर का सेमिनार हो रहा है, रोबोट्स हैं वहां पर, सुनने वाला भी रोबोट है, बोलने वाले भी रोबोट है। And in the end, what he's saying, he says that as we have just 5 minutes left, I will take only 3 million questions. That is happening. हमारे पास 5 मिनट है और ज्यादा नहीं, आप 3 million questions पूछ सकते हैं। I can answer only 3 million questions. So it's not a strange thing nowadays. But it is dangerous also. Suppose, okay, in medical we are using robots, it's fine. But what will happen when only robots will work? They will work in the fields, they will work in your labs, they will work in your classroom. Then what a teacher will do? रोबोट आएगा, कहेगा गुरुजी बाहर निकलिए, आपकी जरूरत नहीं है। और जो भविष्य में जो नीति नियंता होंगे वो भी कहेंगे कोई जरूरत नहीं है, रोबोट को हमें तनख्वाह तो देनी नहीं पड़ती, आपको तो एक एक व्यक्ति को लाखों लाखों रुपए तनख्वाह मिल रही है, क्या जरूरत है? 10 रोबोट ले लिया, एक बार खर्च कर दिया, जिंदगी भर का काम निकल गया। एक चीज उसमें फीड कर दी, वो आएगा अपना पढ़ाएगा। कि आज उसको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना है तो वो अपना बटन दबाया और उसने सब कुछ बता दिया कि कांट कौन थे और दांते कौन थे और दूसरे लोग कौन थे और महात्मा गांधी कौन थे।
जितनी चीजें आपने फीड की, बट नाउ वी आर गोइंग वन स्टेप अहेड. It is really dangerous. I just last month I read a news that robots now can also take their own decisions. This is not good. अभी तक तो ये था कि भाई जो आपके ऊपर आपके उसमें फीड किया गया उसके हिसाब से व्यवहार करेगा, लेकिन जब वो सोचने लगेगा खुद, वो वैसा व्यवहार करने लगेगा, तब क्या होगा? अभी आप खुद देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मनुष्य की तरह रोबोट्स बनाए हैं और बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं जो एआई एंकर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. देखा होगा, आपने भी देखा होगा निश्चित रूप से. और ये पहचान पाना मुश्किल होता है कि मनुष्य है या मशीन है. You cannot recognize because they are also blinking their eyes, they are also moving their heads, they are also wearing the clothes like us. वो हम सब की तरह कपड़े पहन रहे हैं, आंखें झपका रहे हैं, हाथ चला रहे हैं, मुंह चला रहे हैं, बोल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं. हाँ, मुस्कुराहट उतनी अच्छी नहीं होती जितनी आम मनुष्यों की है, वो भी हो जाएगी. तो ये खतरनाक बात होगी. उस बेचारे वो तो एंकर हो गया, लेकिन किसी एंकर की नौकरी तो चली गई ना, क्योंकि वो थक नहीं रहा है ना. उसको 24 घंटे आप काम कराइए, उसको सोने की जरूरत भी नहीं है. बस वो इलेक्ट्रिक पावर उसको मिलते रहना चाहिए, उसकी बैटरी चार्ज रहनी चाहिए. मनुष्य की बैटरी आप जितना चार्ज कर दें वो संभव नहीं. हाँ बोलिए प्राची जी, कुछ कह रहे हैं. Sir, Mary Shelley also discussed the same thing in her novel Frankenstein. Right. So many people are saying the same thing. Their thinking process are same. I didn't read that book, but what is my feeling? What I am telling you. There is also one another book that is related to environment, and you and I and everyone who is here, all the teachers should read that book. And the name of that book, perhaps आपने पढ़ी भी हो, The Silent Spring. Yes, sir. The Rahul Silent Kaushal. Spring, yeah. The Silent Spring is very famous book. And it was written by Rachel Dar. A small child, he asked the question in 50s to Rachel Dar that how will be that time when in the autumn, in the springtime, there will not be any butterfly. वो वसंत कैसा होगा जब कोई तितली नहीं होगी, जब फूल नहीं खिलेंगे, जब बगीचे में सन्नाटा होगा. और वो समय आ रहा है. आज से 75 साल पहले ये बात हुई. 70-75 साल पहले उसने पूछा, क्योंकि उस समय डीडीटी का उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा था. डीडीटी आप जानते हैं क्या है. और उस पूरे के पूरे उसके व्यवहार के कारण फसलें नष्ट हो रही थी. उसके छिड़काव के कारण बाद में बैन भी हुआ. तो उसको लेकर के उस बच्चे ने प्रश्न किया. देन शी रोट अ बुक, द साइलेंट स्प्रिंग. और वहीं से पर्यावरण विज्ञान पर सोचने का सिलसिला शुरू हुआ. तो हम लोगों को खुद भी पढ़ना चाहिए, बताना चाहिए दूसरों को, अपने विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि ये चीजें पढ़ो. क्योंकि अगर प्रकृति नष्ट होगी, पर्यावरण नष्ट होगा, तो कुछ बचेगा नहीं. हम लोग सब बातें करते रह जाएंगे. ये जो बातें कर रहे हैं कोई सुनने वाला ही नहीं होगा. और हम देख चुके हैं आज से 4 साल पहले 2020 की मार्च में जब पैंडेमिक आया, व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड. एवरीवन वाज अफेक्टेड, आइदर पर्सनली और इन अ सोसाइटल वे. हर जगह हम उसे देख रहे थे. हम सब घरों में कैद हो गए थे, बाहर निकलना मुश्किल था. मैं 45 दिन घर से बाहर नहीं निकला. आई वॉज एट द टाइम इन यूरोप. बट द सिचुएशन वॉज रियली पैथेटिक. भारत की खबरें, दुनिया की खबरें हम लोग देखते थे. हाँ, एक चीज बहुत हो गई थी उस समय, आसमान साफ हो गया था, बिल्कुल साफ हो गया था, क्योंकि हवाई जहाज नहीं उड़ रहे थे. नदी साफ हो गई थी. लोगों को
आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, दिल्ली से थोड़ा आगे बढ़े तो वहां पंजाब से हिमालय दिखने लगा था, लोगों ने फेसबुक पे डालना शुरू कर दिया था। बंबई के लोगों ने डालना शुरू कर दिया था कि इतना साफ आसमान तो हमने जीवन में देखा ही नहीं। सो पीपल वर हैप्पी इन अनदर वे, बट द सिचुएशन वाज रियली बैड। क्या हुआ, 2 साल बाद धीरे 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 अब हम फिर सब भूल गए। उसी गति से फिर सारी चीजें चलने लगी, हम उसी गति से, आप देखें ना दिल्ली का जो एयर लेवल है जिसको कहते हैं, कितना क्या AQI सर, एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है AQI, वो Yes, sir. कितना खतरनाक है, या दूसरे शहरों का भी। इसीलिए जब हमको मौका मिलता है हम सब कहाँ भागते हैं, पहाड़ों की ओर भागते हैं, समुद्र की ओर भागते हैं, जंगलों में भागते हैं, क्योंकि हमने कुछ व्यवस्थित नहीं रखा है। क्या जरूरत है कि एक परिवार में 4 गाड़ियां हों? कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमने उसे अपनी जरूरत बना लिया है। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने इस पर भी नियंत्रण किया है। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिन्होंने पूरे समाज को तमाम तरीके से नियंत्रित कर रखा है। जिन्होंने नहीं किया वो उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। तो खैर ये तो दूसरी बात हुई, लेकिन जरूरी है इन सारी चीजों को भी बताना, उन पुस्तकों के बारे में बताना जो इसकी ओर संकेत करती हैं। एक फिल्म है, शायद आप लोगों ने देखी होगी, डे आफ्टर टुमारो। उस फिल्म में भी वही पर्यावरण को लेकर के ही कि एक अचानक ऐसा समय आता है कि सब कुछ बर्फ में तब्दील हो जाता है, इतनी ज्यादा बर्फ गिरती है, क्या समय होगा। तो चलिए फिलहाल जो है उसकी हम चिंता करें, इसको ही बचा लें तो बेहतर है। जब भी हम कोई अपना व्याख्यान देना शुरू करते हैं तो कुछ चीजें हैं जो एकदम शुरू में हमें जाननी और समझनी चाहिए। Why someone is attending any lecture? As I asked to you, आप ये लेक्चर क्यों अटेंड कर रहे हैं? जब आप कक्षा में जाए तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। Why student will come and listen you? There should be some motive. Then what important information or knowledge is going to be communicated by a speaker? जो स्पीकर है, जो व्याख्यान करता है, वो कौन सी ऐसी सूचना देने जा रहा है, वो कौन सा ऐसा ज्ञान देने जा रहा है जो उनके लिए लाभकर होगा। और व्हाट मस्ट अ ट्रेनी और अ स्टूडेंट बी एबल टू डू आफ्टर लेक्चर। और इस लेक्चर को सुनने के बाद, आपके लेक्चर को सुनने के बाद, मेरे लेक्चर को सुनने के बाद आप क्या करेंगे? जो ट्रेनी है, जो प्रशिक्षु है, वो क्या करेगा? उसकी योग्यता कितनी बढ़ेगी, स्टूडेंट की योग्यता कितनी बढ़ेगी। और उसको इतना एक साथ जानकारी नहीं दे देनी चाहिए कि वो ब्लास्ट कर जाए। जैसे आप कोई एक, मान लीजिए एक गुब्बारा है, उसमें आप हवा भरते हैं भरते हैं भरते हैं भरते हैं, एक समय तक उसकी सीमा है, उससे अधिक अगर आप देंगे तो गुब्बारा फट जाएगा, क्योंकि वो उसकी ग्रेस्पिंग इतनी है ही नहीं, देयर इज नो स्पेस, उतना स्पेस नहीं है। कक्षा में भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम अपनी बातें कह रहे हैं तो जितना उसकी ग्रेस्पिंग पावर है टारगेट ग्रुप की, उतना ही दीजिए। उससे अधिक अगर आपने दिया तो सारी की सारी चीजें विद्यार्थी के लिए भी अनुपयोगी हो जाएंगी और वो फिर कक्षा से भागने लगेगा। बात करते हैं कि जो लेक्चर हम तैयार करते हैं, जो व्याख्यान तैयार करते हैं, उसके स्टेजेस हैं 1 by 1। ये जरूरी है, फिर इसके बाद हमें ये करना है, फिर हमें ये करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये तय करना चाहिए, जिसकी अभी मैंने चर्चा की, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेक्चर। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? देन एंट्री बिहेवियर। अभी मैं केवल यह नाम ले रहा हूं, आगे बस इसके बाद एक एक करके पॉइंट्स को मैं एलेबोरेट करने की कोशिश करूंगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ अ लेक्चर, देन एंट्री बिहेवियर, वो पूरा का पूरा जो ग्रुप है उसका बिहेवियर क्या है, उसका एंट्री बिहेवियर क्या है। देन व्हाट इज द लर्निंग इवेंट, व्हाट यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट, आप किस रूप में उसे दे रहे हैं। फिर डिसाइडिंग द कंटेंट, जो आप कंटेंट दे रहे हैं आपको तय करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने
कठिन चीज पहले ही उठा ली पढ़ाने के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको सरल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाना है, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इस पर आगे भी एक स्लाइड है। फिर प्लानिंग द सीक्वेंस, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देन प्लानिंग फॉर मैक्सिमम रिकॉल, ये भी जरूरी है जानना। फिर स्ट्रक्चर क्या है आपके लेक्चर डिलीवरी का पूरा। यूज ऑफ विजुअल एड्स, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देन in the last, performance assessment, how you assess the performance or review, and feedback of yourself। ये सारे उसके चरण है, अलग अलग चरण है जिन पर हम क्रमशः बात करेंगे। तो पहला जो मैंने आपको बताया था, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ लेक्चर, व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ लिसनर आफ्टर द लेक्चर। ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उद्देश्य ये होना चाहिए। उसको सुनने के बाद वो लिसनर क्या करेगा, एंड हाउ देयर परफॉर्मेंस कैन बी चेक्ड, तभी तो आपको पता चलेगा। सो व्हाट द लिसनर कैन डू आफ्टर द लेक्चर एंड हाउ वी आर गोइंग टू चेक द रिसेप्टिविटी ऑफ अ लिसनर, उसकी ग्राह्यता कितनी है, वो चीजें कितनी ग्रहण कर रहा है, ये मुख्य ऑब्जेक्टिव है, ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरा जो बिंदु था वो है एंट्री बिहेवियर। जो आपका व्याख्यान सुनने के लिए आया है उसकी भूमिका क्या है, उसका व्यवहार क्या है। बिकॉज मच ऑफ द सक्सेस और एनी काइंड ऑफ फेल्योर ऑफ अ लेक्चर डिपेंड्स ऑन द लर्नर्स, ऑन द लिसनर्स। मैंने जो कुछ बताया, क्योंकि यहाँ मैं व्याख्यानकर्ता की भूमिका में हूँ, रिसोर्स पर्सन की भूमिका में हूँ, तो इसकी सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हमारे लर्नर्स कौन है, उन्होंने कैसे उस चीज को लिया है। You have also submit your feedback about all the resource persons, I think so, because we also do the same here. So you also allocate some marks or some grades कि ये लेक्चर बहुत अच्छा था, ये लेक्चर बहुत अच्छा नहीं था, ये सो था, इससे हमें ज्यादा मिला, इनका और कराइए। कई बार होता है, बहुत सारे रिसोर्स पर्सन आते हैं, दे ओनली डिलीवर 1 lecture or 2 lectures but participants write that सर इनका एक आध लेक्चर और हो। और कभी कभी ये भी हुआ है कि जब उनका दूसरा लेक्चर रखा है तो कहा गया अरे सर गड़बड़ हो गया, एक ही ठीक था, ये भी होता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू बिकॉज यू आर ग्रेस्पिंग द थिंग्स इन योर ओन वे। रिसोर्स पर्सन तो बेचारा अपनी तैयारी करके आता ही है, उसे 1.5 घंटा बोलना है। इट इज नॉट इजी टू स्पीक 90 minutes in one flow, but perhaps you know it that in foreign countries we have very small classes, 1 hour classes generally in our colleges or universities, or more or less than that, 45 minutes sometimes or 40 minutes. When I joined the foreign university, when I went there, and the very first day they told me that you have to take 2 classes continuously. I said okay, no problem, and each class for 2 hours, means you have to speak for 4 hours in a day, and in the same classroom, even the batch is not changed. I said, how it is possible that the students, they will listen me for 4 hours, the same student? It is torturous for them. They said, no, it is our practice. And I also started. तो शुरू में तो मुझे भी पहले दिन लगा कि कैसे होगा, लेकिन ठीक है। पहले दूसरे लेक्चर के बीच में जैसे यहाँ 10 मिनट गैप होता है, वहां भी गैप होता था, लेकिन विद्यार्थियों को सुविधा थी कि वो क्लासरूम में अपनी कॉफी भी लेके आ जाते थे, चाय भी ले, जो भी है, कॉफी ज्यादा पॉपुलर है, चाय तो इंडियन टी तो नहीं। तो कहने का मतलब ये कि बहुत सारी जगहों पर हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, और तब जब हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारा लेक्चर सुनने के बाद क्या चीजें मिल रही हैं, इनको मिल भी रहा है कुछ कि नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे, वो कितना सीख पाएंगे, तो ये एंट्री बिहेवियर के स्तर पे हम ऐसी चर्चा करते हैं। फिर जो लार्ज लर्निंग ग्रुप होता है,
उसमें हमेशा इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, बिकॉज एवरीवन हैज इट्स ओन कैपेसिटी। जो नॉलेज बेस उनका अलग अलग है, उनका रिसेप्टिविटी उनकी अलग अलग है, उनकी सेंसिटिविटी अलग अलग है। और वी शुड ऑल्सो कीप इन आवर माइंड द मेच्योरिटी ऑफ द लर्नर्स, बिकॉज if I will talk to a student of graduate classes as I'm talking here, it will not work, because you are like our colleagues. आपकी जो मेच्योरिटी का लेवल है, स्तर है, परिपक्वता का स्तर बिल्कुल अलग है, और उनकी परिपक्वता का स्तर अलग है। वो जब ग्रेजुएट क्लासेस में आते हैं तो दे जस्ट पास क्लास 12th, वो एक एडोलेसेंट एज से निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं। उनके अपने टेंशन्स हैं, उनके अपने ईगोज हैं, उनकी अपनी थिंकिंग है, उनकी अपनी एक अलग दुनिया है। और उस दुनिया में उस समय तो आपको भी लगता होगा, मुझे भी लगता था कि अरे सब बेकार है, जो मैं सोच रहा हूँ, मैं सोच रही हूँ वही सच है। ये जो सामने वाला इतनी बातें कर रहा है, इसको कुछ पता भी है। आज तो और ज्यादा हो गया है, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। लेकिन वही जब विद्यार्थी जब मैच्योर होता है, जब वो पोस्ट ग्रेजुएशन में जाता है, तब उसका लेवल बदल जाता है, सोचने का बदल जाता है। जब वो रिसर्च में जाता है तो और बदलता है। तो एक बड़े विद्वान ने एक दिन ऐसे ही बातचीत के दौरान मुझसे कहा कि संस्कृत आती है? मैंने कहा कि हाँ, ग्रेजुएशन में पढ़ी है मैंने, ग्रेजुएशन तक पढ़ी है मैंने संस्कृत, एक स्पेशल पेपर के रूप में मैंने पढ़ा। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि जब आदमी स्नातक कक्षा में होता है, व्हेन ही इज स्टडीइंग और शी इज स्टडीइंग इन ग्रेजुएट क्लासेस, उसको लगता है कि आई नो एवरीथिंग। एंड व्हेन ही और शी एंटर्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो थिंकिंग में थोड़ा बदलाव आता है और उसको लगता है कि नहीं, थोड़ा हम कम जानते हैं। जब वो रिसर्च में जाता है तो उसको लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं जानते, बहुत कम जानते हैं। और जब वो टीचिंग में आता है तब उसको लगता है कि अरे दुनिया तो बहुत बड़ी है, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, हर दिन नई चीज है। इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ फीलिंग, this kind of approach, and if you feel that you are a student, always a student, you will prove yourself as a good teacher. If you think that no, I'm not a student, I'm a teacher, I know everything, it is not possible. शिक्षा से जुड़े हुए मुझे भी बहुत लंबा अरसा हो गया, लेकिन हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है, हर दिन कुछ नया करने को मिलता है। किताबें मिलती हैं, आप उसे पढ़िए, जानिए, समझिए, और जो भी किताबें होंगी वो आपके लिए उपयोगी होंगी, वो आपको कहीं ना कहीं मदद करेंगी। किसी भी विषय की, कोई जरूरी नहीं कि आप विज्ञान के विद्यार्थी हो तो साहित्य न पढ़े, साहित्य के विद्यार्थी हो तो विज्ञान न पढ़े। ये ठीक वैसे ही कि हम साइंस फिक्शन भी देखते हैं फिल्मों में, और हम थ्रिलर भी देखते हैं, हम रोमांस भी देखते हैं, हम हॉरर भी देखते हैं। रुचियां अलग अलग लोगों की हो सकती है, लेकिन जो फिल्म बहुत फेमस है वो किसी भी जॉनर की हो, अगर आपके किसी मित्र ने बताया तो आप उसे कि नहीं ये फिल्म देखना, तो आप उसे देखना पसंद करते हैं। हो सकता है पूरी देखें, हो सकता है ना देखें, छोड़ दें। पिक्चर हॉल में गए तो मजबूरी है देखने की। अभी एक खतरनाक टाइप की फिल्म मैंने देखी, मैं नाम नहीं लूंगा, हो सकता है कुछ लोग बुरा मान जाए। सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट, तो बहुत दिनों से थिएटर में कोई फिल्म नहीं देखी थी। हमारे एक मित्र ने कहा संडे है, चलो चलते हैं, तो हम लोग सपरिवार चले गए। वी स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि 3D फिल्म थी। और फिल्म देखने के बाद मेरी तो समझ में नहीं आया कि है क्या फिल्म, क्या स्टोरी है इसकी, कौन सी माइथोलॉजी इसमें है, कौन सा इसमें आध्यात्म है, कौन सी चीजें हैं। आदि तो पुरुष की बात कर रहे हैं सर? नहीं, मैं कोई नाम नहीं लूंगा, है ना, मेरे भी अपने खतरे हैं भाई, है ना। तो अब किसी को स्त्री बहुत पसंद आ सकती है, किसी को आदि पुरुष पसंद आ सकती है, लेकिन ये दोनों फिल्में नहीं थी, इतना बता देता हूँ। बहरहाल
वो फिल्म देखने के बाद मैं अभी तक सोच रहा हूँ कि मैं वो फिल्म देखने क्यों गया और क्या मिला। कुछ तो भाई कहानी होनी चाहिए, कुछ तो गेनिंग होनी चाहिए। तो यही बात जो मैंने अभी कही ना कि आफ्टर द लेक्चर व्हाट वी आर गेटिंग, व्हाट अदर्स विल गेट फ्रॉम योर लेक्चर, इफ नॉट देन इट इज यूजलेस एज आई डिड। कि सब कुछ देखने के बाद 3 घंटा बिताने के बाद लग रहा था कि अरे यार आज का 3 घंटा इतना बर्बाद होगा ये सोचा नहीं था। और सारे बड़े आर्टिस्ट लोग आगे चले जा रहे हैं देखने के लिए और लोग कह रहे अरे वाह वाह। हमने कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो मैंने ऐसे ही उनका ये फिल्म देखी, मैंने कहा कि हाँ देखी यार, मेरी समझ में नहीं आई या तो मेरा विवेक बहुत थोड़ा है, मैं नहीं समझ पाया। उन्होंने कहा अरे यार इतनी अच्छी फिल्म है, आप कैसे कह रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा बिल्कुल, मैं तो कह ही रहा हूँ कि मैं नहीं समझ पाया। तो ऐसा भी होता है, लेकिन ऐसा हमेशा हो यह संभव नहीं है। तो यही बात लेक्चर के साथ भी है। हम हमेशा मेच्योरिटी ऑफ लर्नर्स को ध्यान में रख करके बात करेंगे तो शायद बात बनेगी। फिर जो असेसमेंट मेजर है फॉर यंगर ट्रेनिंग्स माइट बी मींस ऑफ अ रिटन टेस्ट। जो हम असेसमेंट की बात कर रहे हैं कि कैसे पता चलेगा कि क्या है, तो हम रिटन टेस्ट के माध्यम से लेते ही हैं। इंटरनल एग्जाम जो हमारा एग्जामिनेशन होता है, इंटरनल असेसमेंट होता है, उसमें हम रिटन टेस्ट भी लेते हैं। और ये भी ध्यान रखिए कि एक फ्लेक्सिबिलिटी जिसको हम कहते हैं वो भी जरूरी है। हमको अपनी कक्षा में जब हम मेंटरी बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो ये भी ध्यान रखिए कि कुछ से कुछ इंटरेक्शन होना चाहिए, वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। एज आई एम आस्किंग समथिंग टू यू and you are answering. In the same way, you should also ask some questions in between so that you can also know how attentive your class is. आप बीच में अचानक किसी से पढ़ाते पढ़ाते रुक करके कहिए अरे भाई जरा शैलेश जी बताइए तो मैंने क्या कहा अभी, और अगर आपने ध्यान से सुना तो तुरंत उसका उत्तर दे देंगे। जिस विद्यार्थी ने ध्यान सुना वो तुरंत बताएगा या हाथ उठाएगा, और जिसने सुना ही नहीं वो पूछेगा सर क्या कहा, मैं सुन नहीं पाया। ये एक बड़ा सामान्य बहाना होता है, सर आवाज सुनाई नहीं दी, बड़ा शोर हो रहा था ऐसे, जिससे बात नहीं करनी होती ना फोन पे मोबाइल पे, देख तो रहा नहीं। तो उससे कहते हैं हाँ हाँ क्या है, अगर काम की बात नहीं है तो कहते हैं सर कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है सर, बाद में बात करेंगे। कक्षा में तो नहीं हो सकता क्योंकि कनेक्टिविटी तो वहां सामने है, 1-to-1 है। स्टिल बहुत सारे बहाने हो सकते हैं। तो हम हमेशा इंटरेक्शन को प्रमोट करें और अपने व्याख्यान में जो संदर्भ है, दूसरे संदर्भ है, अदर रेफरेंसेस, वी शुड आल्सो सेलेक्ट देम एंड प्रेजेंट देम, यूज एनेक्डोट्स एंड सिमिलर मीन्स टू क्रिएट इंटरेस्ट। इससे इंटरेस्ट बना रहेगा। हो सकता है कोई हास्य परक बात आपको याद आ जाए उससे पढ़ाते पढ़ाते, तो व्यक्ति का एक इंटरेस्ट आ जाता है। कोई शेर याद आ जाए, जैसे मैंने आपको अभी कुछ कविताओं की पंक्ति सुनाई, कोई संस्कृत का श्लोक याद आ जाए, कोई इंग्लिश की कविता याद आ जाए, कोई इंस्टांस याद आ जाए जो बिल्कुल वैसा ही हो। अब अगर आप मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस के ही विद्यार्थी हैं, सपोज, आई होप दैट amongst you there are some teachers of political science, isn't? कोई है आप में से जो पॉलिटिकल साइंस का है? चलिए हिस्ट्री का कोई है? हिस्ट्री का कोई है? Yes, sir. हाँ Sir, I am from political science. ओके हर गुरप्रीत जी, हर गुरु हाँ जी, प्रताप जी, आप पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस सर। political science. Okay. Suppose you have gone to Italy and you have visited the place of Dante. Okay. Or you have been there in Greece and you are talking about Aristotle or Socrates. And when he will say that I have seen the house of Dante, definitely the student will like it. आप बताएं कि वहां मैं गया, मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा और
मुझे ये चीजें वहां देखने को मिली. If you have some pictures also, you can also show. And in that way, the student will remember that Dante is also have some relation with Italy, or Socrates has some relation with Greece. या मैडम क्यूरी कहाँ रहती हैं, अगर आप वहां गए हैं, उनके म्यूजियम को देखा है, उसके बारे में बताइए. सिकंदर को पढ़ाते समय, इतिहास पढ़ाते समय अगर आप कभी मैसेडोनिया गए हैं तो उसके बारे में बताइए. अभी मैं गया पिछले 2 साल पहले मैसेडोनिया. एक चीज मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, मैंने पूछा वहां लोगों से कि यहाँ लोगों से ज्यादा तो मुझे स्टेच्यूज दिखाई दे रहे हैं. हर बिल्डिंग में 100 स्टेच्यू. अद्भुत. तो लोगों ने कहा कि हाँ, यहाँ एक सरकार आई थी जिसको लगा कि हम अपने राजधानी को इसी तरह सुंदर बना सकते हैं, तो सबके स्टेच्यू, हर कदम पर स्टेच्यू, भयानक स्टेच्यूज है. इतने ज्यादा है कि वो आपको कहीं परेशान करने लगते हैं. इतना भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हमारा सोचना है ना. जिन्होंने बनाया उन्होंने उसको सौंदर्य की दृष्टि से बनाया. और सबसे बड़ी स्टैच्यू जो है वहां सिकंदर की है, सिकंदर महान की, उसी सिकंदर की जो हमारे देश तक आया था. मैसेडोनिया पहुंचना आज भी बहुत सरल नहीं है, हजारों किलोमीटर दूर है. वहां से वो व्यक्ति चलता हुआ है तो मुझे तो आश्चर्य हुआ कि अरे ये मैसेडोनिया से चल करके थेसलोनिकी होते हुए पूरा पार करके इतनी लंबी यात्रा करके आया. लेकिन वो मेरे लिए आश्चर्य का भी विषय था और उत्साह का भी विषय था. मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ते समय मैं अपनी युवावस्था में सोचता था कि वेनिस की बड़ी चर्चा सुनी है, क्या कभी जा पाऊंगा वेनिस, कभी देख पाऊंगा. और मैं जब वेनिस गया तो वही खोजता रहा कि यार मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखा, कितना खूबसूरत शहर है, समुद्र के बीच में बसा हुआ एक छोटा सा द्वीप है. उसकी गलियां नापता रहा और सोचता रहा कि यहाँ, अगर आपने मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ी होगी या कोई आप में से अंग्रेजी का अध्यापक होगा, कि शाइलॉक क्या यही था, क्या एंटोनियो बसानियो यही था, क्या जो उसके स्त्री पात्र हैं वो यही थे. और हम कोरिलेट करते हैं. तो ऐसी चीजों को आप देश में, विदेश में, कहीं भी, केवल मैंने तो अभी कुछ विदेश के उदाहरण दिए, देश के भी ऐसे तमाम सारे उदाहरण हैं. आप अपने विषयों से जुड़ी हुई कहानियां सुना सकते हैं, अपने विषयों से जुड़ी हुई बातें बता सकते हैं, दूसरे रेफरेंसेस दे सकते हैं, और इस तरह से हम चीजों को रुचिकर बना सकते हैं. ये हमारे टारगेट ग्रुप के लिए बहुत जरूरी है. एंट्री बिहेवियर जिसको हम कह रहे हैं, तब उनकी रुचि कम से कम जागृत होगी और वे और ध्यान से बातों को सुन पाएंगे. मैच्योर ट्रेनीज ऑफन दे थिंक and also wish to be treated as equal. You all are mature trainees. हम आपसे बच्चों की तरह बात नहीं कर सकते कि किसी बच्चे को जैसे हमने डांट दिया. कभी कभी ये भी हो ही जाता है, क्योंकि लगता है कि स्टूडेंट है तो भाई क्यों हाथ उठा हुआ है बता दीजिए, क्यों माइक खुला हुआ है बंद कर दीजिए, वगैरह वगैरह. लेकिन हम बिल्कुल वैसा व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि जो ट्रेनी है उसकी भी अपनी एक मैच्योरिटी है. वो हमेशा इस बात को कहेगा कि हमारे साथ जो व्यवहार हो वो समानांतर हो. You should also encourage the learners to participate and express themselves. And in that way, you can prove that you are a good teacher. अगर आप ऐसा करते हैं दूसरों को पार्टिसिपेट करने के लिए पूरे के पूरे इवेंट में, तो आपका वह पूरा जो इवेंट है वो एक सफल इवेंट होगा. एक अगला चरण है, वो है लर्निंग इवेंट. So the learning event is a live occasion, because we are speaking live now. I am here live. You are also live. सजीव प्रसारण हो रहा है. कक्षा में तो बिल्कुल ही कहीं कोई बैरियर ही नहीं होता बीच में. वहां कोई टेक्नोलॉजी नहीं है. You are seeing everyone. Everyone is seeing to you. You are assessing them. They are assessing you also. We think that our assessment is correct
I am seeing 40 students, but the eyes of those 40 students are seeing you. They are assessing you every day. You are assessing them, seeing the copies. इंटरनल असेसमेंट दिया तो आपने उनको उनका मूल्यांकन किया, नंबर दिया, वो रोज आपको नंबर दे रहे हैं। आज सर आए या नहीं, मैडम आई या नहीं, आए तो क्या पढ़ाया, आई तो क्या पढ़ाया। यहाँ तक कि आपका आना जाना, चलना उठना बैठना, बात करना, वेशभूषा, even they also see it. Sometimes they also want to follow that one. Many a times, not sometimes. कुछ अध्यापकों को देख करके तो लगता है कि काश अगर हम भविष्य में अध्यापक बने तो इनकी ही तरह ऐसे ही बने। ये भी भावना आती है, आपके मन में भी आई होगी, या आज भी आप पढ़ाते समय अपने उन टीचर्स को याद करते होंगे कि अगर मैं उनकी तरह पढ़ाती तो कितना अच्छा होता, क्योंकि उनका जो पढ़ाया वो आज भी आपको याद है, उनकी जो स्टाइल है वो आज भी आपको याद है, उसने आपको इम्प्रेस। तो ये जो कारण है वो आपके जीवन को एक रास्ता देने वाला कारण है, इसलिए ये सारी चीजें जरूरी है। तो एक लाइव ओकेजन है, जब भी हम लेक्चर देते हैं तो बाकायदा सजीव प्रसारण होता है, एंड इट विल हेल्प द लर्निंग इफ they know, the teacher who is delivering a lecture, that where they are going, किस ओर जा रहे हैं और वहां कैसे जा रहे हैं, what is the way to reach up to the goal, उस लक्ष्य तक आप उन्हें कैसे ले जा रहे हैं, ये बताना भी बहुत जरूरी है। जब हम कंटेंट डिसाइड करने की बात करते हैं, जो अगला चरण है, विषय को निर्धारित करने की बात करते हैं कि आज हमें इस विषय पर पढ़ाना है। आप विज्ञान के अध्यापक हैं, भौतिकी के अध्यापक हैं, और आपको गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताना है, व्हाट इज ग्रेविटी। तो जब ग्रेविटी के बारे में बताएंगे तो उससे जुड़ी सारी बातें आएंगी, लेकिन बहुत सारे उसके साथ इंसिडेंट जुड़े हुए हैं। ये कैसे इसकी शुरुआत हुई, किसने खोजा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, क्या देखा उसने, क्यों खोजा, यानी पॉइंट्स हैं, देयर आर सेवरल पॉइंट्स। हो सकता है सारी चीजें हम एक बार में न बता पाए, सो व्हाट टू डू, यू हैव टू प्रिपेयर अ स्प्रेड डायग्राम। एक कागज ले लीजिए, उस पर आप जो पढ़ाएंगे उसके बारे में, शुरुआती दौर में ये बहुत आवश्यक होता है, हम लोग सामान्यतः ऐसा करते नहीं है, लेकिन आप लिख लीजिए ये आपको पढ़ाना है, ये सारे बिंदु आने चाहिए, एंड इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, चीजें जुड़ती चली जाएंगी, फिर आपको उसमें सेलेक्ट करना है। सो द डायग्राम इज नेवर कंप्लीटेड, it is always incomplete, and more subsidiary elements can be added. There is no real end. So the spread diagram can continue to be expanded. But when you prepare this spread diagram, then after you should see it, thinking that all the items on that diagram could be included in your lecture or not. If they could be, if you have the time, definitely synchronizingly you can say it, teach it. If not, then reducing this could be items to ones that should be included. So first is could, जितनी चीजें लिखी हैं आपने सब पढ़ा दीजिए। अगर समय नहीं है, कम समय है, you have time limit, then you have to select should be, that without this the lecture cannot be completed, the point cannot be understood. इसलिए should be points जरूर होने चाहिए। Again, reducing this should items still further to ones that must be included. तो तीन श्रेणियां हो गई ना, one is could, everything, then should,
then must. You cannot leave the must. ये चीज तो होनी ही है, इसके बगैर तो बात बनी नहीं पाएगी. And the must items from the content of the lecture and study of them may lead you to revise the draft objective. जो ऑब्जेक्टिव है आपका, जो ड्राफ्ट ऑब्जेक्टिव है पूरा का पूरा, जिसको सोच करके कि आपने कंटेंट डिसाइड किया है, उसके कारण ये जो चार्ट बना है, उसके उद्देश्य को हम पूरा कर पाए, यह आवश्यक है. सो वी हैव टू ऑल्सो प्लान द सीक्वेंस वन बाई वन. जैसे आपने मस्त चीजें छांट ली या शुड छांट लिया, उसमें से कुड का एक ग्रुप बना लिया, देन प्लान द सीक्वेंस. व्हाट शुड कम फर्स्ट? इट इज लाइक एन आइसबर्ग. आई थिंक यू ऑल नो अबाउट द आइसबर्ग. व्हाट इज आइसबर्ग? क्या है आइसबर्ग, अशोक जी बताइए. समुद्र में टूटे हुए सर, बर्फ समुद्र के में जो बड़े-बड़े बर्फ हिमखंड। रहता है सर, लगभग समुद्र में जो डूबा हुआ भाग रहता है बर्फ का, उसी को आइसबर्ग बोला जाता है. बर्फ की बहुत बड़ी एक राशि, ग्लेशियर का बहुत बड़ा भाग जब टूट करके और वह समुद्र में आकर के जल प्लावित हो जाता है, उसी को हम ग्लेशियर बोलते हैं. जल प्लावित आप तो गड़बड़ बोल रहे हैं. जल प्लावित तो अंदर चला गया. आइसबर्ग तो दिखता है. समुद्र में सर, समुद्र में बर्फ का जो भाग डूबा रहता है सर, उसी को आइसबर्ग बोला जाता है. देखिए पूरा एक Sir, बर्फ का 10% is the upper part and the 90% is the lower part, which पानी is में, not seen by the common समुद्र के पानी में eyes, which is under the water, submerged under the water. होने लगता है सर वो. तो दिवाकर जी ने जो कहा कि मोस्ट ऑफ द पार्ट इज नॉट विजिबल, जो हम देखते हैं वो कम होता है. और सर जो टाइटैनिक हादसा हुआ था शायद उसी आइसबर्ग के ही थ्रू हुआ था. नहीं, शायद नहीं, उसी के ही कारण हुआ था. शायद हटा दीजिए, ये उसके ही कारण हुआ था. और फिल्म भी उसी के कारण बनी. आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी है. तो चलिए, फिल्मों पे भी कभी कभी बड़ी लंबी बातचीत, पूरा एक सेशन होना चाहिए. फिल्मों को हम कैसे देखें, फिल्में हमें क्या क्या देती हैं, बताती हैं, बहुत सारी चीजें बताती हैं. खैर, आज उस पर बातचीत नहीं करेंगे. तो ये जो आइसबर्ग है, आवर लेक्चर इज लाइक एन आइसबर्ग. हाउ? व्हाट इज शोन, इट इज ओनली 10% or 15%, a little glimpse. But behind that one, there is a great effort of yours, which is beneath the water. जो सारी तैयारी करते हैं, कहा जाता है ना, अध्यापकों के ऊपर बार बार आरोप लगाया जाता है, करते क्या है, 2 घंटे के लिए गए, पढ़ा करके चले गए. उन्हें ये नहीं पता है कहने वालों को कि 2 घंटे बोलने के लिए 20 घंटे पढ़ना पड़ता है भाई. तब जाकर के 2 घंटे कोई बोल पाता है, नहीं तो बोलना बड़ा मुश्किल है. किसी से कही कि ठीक है आप 10 मिनट खड़े होकर भाषण दे दीजिए, अच्छे अच्छे लोगों का पसीना छूटने लगता है. कंटिन्यू 10 मिनट बोलना ये बहुत सामान्य बात नहीं है, क्योंकि गप नहीं मारना है ना, किसी एक विषय को लेकर के आपको उसे एलिबरेट करना है. देन व्हाट यू डू बिफोर प्रिपेयरिंग अ लेक्चर, लाइक एन आइसबर्ग, द फाइनल प्रोडक्ट विच इज सीन, जो दिख रहा है, और जो उसके नीचे है, beneath the water है, that is your editing, that is collection of the material, that is the preface, that is also research, the revision, the audience, the topic. So many things are there, which is hidden, जो दिखता नहीं है. दिखता तो फाइनल प्रोडक्ट है जो हम कक्षा में बोल रहे हैं. अगर मैंने पीपीटी तैयार किया, अगर आपने पीपीटी तैयार किया, तो उसके लिए आपने कुछ सामग्री कलेक्ट की ना, कुछ एडिट किया, फिर एडिट करने के बाद उसको आपने एक पीपीटी के अलग अलग स्लाइड्स में डाला, कुछ लिखा, उससे रिलेटेड कोरिलेशन बनाया, अच्छी तस्वीरें आ सकें, ये देखा. तो अब ये सारी की सारी चीजें होने में वक्त लगता है. आपने टाइम स्पेंड किया, अपना समय दिया, और 45 मिनट में आपने व्याख्यान दे दिया. तो कहा तो गया कि भाई इन्होंने क्या किया कि 45 मिनट में व्याख्यान दिया, बट द लेबर यू डिड बिहाइंड इट, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट. देयरफॉर वी नीड टू कंसिडर व्हाट इज लॉजिकल फ्रॉम अ ट्रेनीज पॉइंट ऑफ व्यू. ये जानना भी जरूरी है.
So we must be careful. What seems logical to the lecturer may not seem to the trainees. हमारे लिए जो हमें जो दिख रहा है, जिस तरीके से हम चीजों को ले रहे हैं, वो ट्रेनिस को तो नहीं दिखेगा, लेकिन हमें उसकी मेहनत तो करनी है. देन एक और चीज ध्यान में रखनी है कि हम जो प्लान करते हैं, उसको प्लान करते समय जिसको लोग, जिस माध्यम से हम, जिस रास्ते से उन्हें ले जाते हैं आगे, वो क्या है एक अध्यापक के लिए. दैट इज फ्रॉम नोन टू द अननोन. यही काम हम करते हैं. हमारा मुख्य काम तो यही है ना कि हम पहले देखते हैं विद्यार्थी जो जानता है उससे अज्ञात की ओर ले जाए. ज्ञात से अज्ञात की ओर की यात्रा है ये. जैसे आप जब कक्षा में जाते हैं, मान लीजिए आपको लिटरेचर पढ़ाना है, कबीर को पढ़ाना है, तो आप पूछेंगे भाई कबीर कौन थे जानते हो? हो सकता है कोई विद्यार्थी हाथ उठा दे, हो सकता है कोई हाथ ना उठाए. फिर आप पूछेंगे अच्छा ठीक है बताओ कौन थे, तो कहेगा कि सर वो एक संत कवि थे, भक्त कवि थे, वगैरह वगैरह जो भी. फिर आप पूछ सकते हैं अच्छा कहाँ पैदा हुए थे, पीछे की कहानी क्या है. चलो आज फिर उनकी हम कुछ कविताएं पढ़ते हैं. आप यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं. तो नोन टू अननोन की यात्रा है दिस टीचिंग मेथड. एंड अगेन फ्रॉम सिंपल टू द कॉम्प्लेक्स, जिसके बारे में पहले भी मैंने आपसे कहा. पहले हम कठिन चीज नहीं बताते हैं, पहले हम सरल चीजें बताते हैं. लाइक इफ यू आर इन अ लेबोरेटरी, so in the very beginning, if you are the teacher of chemistry, what you do, the simplest जो दो रसायनों को आप मिलाएंगे, केमिकल्स को मिलाएंगे, उससे क्या बनेगा वो आप बताएंगे. फिर आप कॉम्प्लेक्स चीजों को बताएंगे कि देखो ये दो से तो ये बन गया, लेकिन इन दोनों से बना के बताओ कि क्या होगा. और लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती है. लगातार लोग इस पे खोज करते रहते हैं. वैज्ञानिकों का काम क्या है? यही है. वो हमेशा एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट, न्यू एक्सपेरिमेंट्स. और अब तो एक्सपेरिमेंट्स की स्थिति ये हो गई है, आप मोटे तौर पर एनर्जी को ही ले लें. हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं. अपनी कारों को हम पेट्रोल की बजाय अन्य चीजों से चलाने की बात कर रहे हैं. चलाना शुरू हो गया. पहले हम नहीं सोचते थे गैस से कार चल सकती है क्या, सीएनजी से, एलपीजी से कारें चलेंगी क्या? चल रही हैं. वही एलपीजी आपकी कार को आगे बढ़ा रहा है, वही एलपीजी आपके घर में किचन में है. और फिर इलेक्ट्रॉनिक कारें आ गई. अब तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ गए हैं तमाम सारे, चाहे 2 व्हीलर्स हो चाहे 4 व्हीलर्स हो. अभी हमारे यहाँ थोड़ा महंगे हैं, धीरे धीरे और सस्ते हो जाएंगे. आने वाले समय में और आगे बढ़ करके हम अपने घर के नल से खोलेंगे पानी और उसमें डालेंगे कार की डिक्की में और चल देंगे. वो असंभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां भी तो पावर है ही है, बन ही रहा है. कोई ना कोई डायनामो होगा जो उसे भी कन्वर्ट कर देगा. अभी महंगा होगा, 100 साल 200 साल बाद तब तक हम में से कोई नहीं रहेगा. अगर कोई रहे तो बहुत अच्छी बात है. मैं जानता हूं मैं तो नहीं रहूंगा, लेकिन कोई पीढ़ी होगी जो शायद ये समय देखे और इसको लेकर के तमाम सारी चीजें लोग सोचते रहते हैं. आज हम जिस वर्ज पर पहुंचे हैं, विकास के जिस मुकाम पर हम लोग हैं, वो इसी सोच का परिणाम है. और उसमें अध्यापकों की बड़ी भारी भूमिका है. अगर एडिसन ने नहीं सोचा होता, मार्कोनी ने नहीं सोचा होता, ग्राहम बेल ने नहीं सोचा होता, मैकमिलन ने नहीं सोचा होता, राइट ब्रदर्स ने नहीं सोचा होता, हमारे यहाँ आर्यभट्ट ने नहीं सोचा होता, चरक ने नहीं सोचा होता, सुश्रुत ने नहीं सोचा होता, वराहमिहिर ने नहीं सोचा होता, तो आज हम यहाँ होते क्या? नहीं होते. हम लोग सारे जितने यहाँ बैठे हैं सब एक दूसरे से सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं. आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं. अगर आपने अपना ऑन कर रखा है वीडियो, आप मेरी बात सुन रहे हैं. जब जरूरत है तब मैं आपकी बात सुन रहा हूं. न चाहते हुए भी कभी कभी सुनना पड़ रहा है. जैसे अभी कुछ ध्वनियां आ रही हैं कार की, तो ब्रजेश जी यात्रा कर रहे हैं और
उनका माइक ऑन है। ब्रजेश जी माइक ऑफ कर लीजिए तो हम लोग कम से कम ये तो जान पाए कि आप यात्रा नहीं कर रहे हैं। ब्रजेश जी असल में व्यस्त है ड्राइविंग में, कोई बात नहीं। ब्रजेश जी आप मेरी बात सुन रहे हैं? डॉक्टर दरअसल ब्रजेश, सुन ही नहीं रहे। कोई बात नहीं। सर लग रहा है सुन नहीं पा रहे हैं। ब्रिजेश सर प्लीज म्यूट योर माइक। अब उस भीड़ में उनको बाइक चला रहे हैं सर और लग रहा है सर वो सुन नहीं पा रहे। सर शायद बाइक चला रहे हैं सर। देखिए ये भी एक कला है, बाइक चलाते हुए व्याख्यान सुनना। और कल्पना कीजिए कि आप जब व्याख्यान दे रहे हो ब्रजेश जी या आप सभी लोग, तो आपकी कक्षा में कोई बाइक ऐसे ही लेकर के आए और बाइक चलाते हुए सुने, तो आपको जो अनुभूति होगी वही अनुभूति इस समय मुझे भी हो रही है। अपना काम है गाड़ी ट्रांसफर कराने का, तो ये ठेका कौन लगा रहा है? ये वाले यार, डॉक्टर हमें ब्रजेश, अपना काम है वहाँ। डॉक्टर ब्रजेश प्लीज। सर लगता है वो सुन नहीं पा रहे हैं, वो मोबाइल ट्रांसफर करानी कुछ है। मैटर हो गया सर। हमें जो है यहाँ भी, यहाँ किस बात के हम ठेके के पैसे दें? आप अंदर जाओगे, गाड़ी की पर्ची कट के आप अंदर जाओगे। देखिए ब्रजेश जी पकड़े गए, तुम घूस ले रहे हो यार। ब्रजेश जी पकड़े गए, क्यों? किसी सिपाही ने उनको पकड़ फिर लिया जैसे है। बड़ी मुश्किल में है सर। सुनो बात, सुनो भैया। अरे डॉक्टर, अरे भाई छोड़ दीजिए, लेक्चर सुन रहे हैं। तो तनख्वाह हमें मिलती है, ठीक है? सर ये लग रहा है कि सुन नहीं पा रहे। क्लास 1 में हूँ सर होस्ट से रिक्वेस्ट किया जाए बंद करें। ऐसा मत करो यार, टीचर आदमी, प्रोफेसर आदमी, लोगों को यार ऐसे यार करोगे हाँ, तो कैसे देखिए, चलेगा? हमको नंबर दो तो इतने संकट की बात है। मैंने थोड़ी देर चर्चा की थी, वो घटित हो रहा है। बंद हो गया। तो देखिए ये भी होता है कि अब आप सबको पता चला कि वो गलत ढंग से मोटरसाइकिल चला रहे थे और पकड़ दिया है आरटीओ ने। अब वो सारी दुहाई दे रहे हैं, मैं टीचर हूँ, मैं अध्यापक हूँ, और ये नहीं बता रहे। अगर अभी मैं कह दूं कि इनको जरूर पकड़ना, क्योंकि ये सुन ही नहीं रहे हैं बात। जो काम इनको करना चाहिए वो काम छोड़ के मोटरसाइकिल चलाना है। प्रोफेसर फायजा जी को जरूर ये बता दूंगा कि आप ऐसे प्रतिभागियों को कृपया वहीं से नमस्कार कर दे तो ज्यादा अच्छा है। फिर से ब्रजेश जी ने अपना माइक ऑन कर दिया है, अनम्यूट कर दिया है। तो ब्रजेश जी आप मुक्त हो गए आरटीओ से? ब्रजेश जी चलिए। हाँ देखिए, ब्रजेश जी ने अपना बाकायदा वीडियो भी ऑन कर दिया। सर मुक्त हो चुके हैं सर। हाँ, गनीमत है कि वो उन्होंने ले रखा है। बहरहाल मैं आपसे ये कह रहा था कि जब भी हम कुछ प्लान करते हैं तो अपने लेक्चर्स में नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड देन कॉन्क्रीट टू द एब्स्ट्रैक्ट, जो विजिबल है, जो कॉन्क्रीट है, दिखता है हमें, उससे हम अदृश्य की ओर ले जाते हैं अपने विद्यार्थी को। ये बात है। और ऑब्जर्वेशन जो हमारी है, उस ऑब्जर्वेशन को पहले बताते हुए फिर हम थ्योरी की बात करते हैं। पहले थ्योरी फिर ऑब्जर्वेशन नहीं होगा। तो स्पेशली विद साइंस सब्जेक्ट्स वी शुड कीप इन माइंड दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग अ लेक्चर, देन first you ask about their observations, then you talk about theory. In that way you will create interest. इस तरह हम उनकी रुचि को ज्यादा जागृत कर पाएंगे। And from general to particular, सामान्य बात से विशेषीकृत की ओर हम जाते हैं। जैसे पहले भी आपने देखा होगा और अभी भी है कि जब हम किसी प्रोफेशनल स्टडीज में जाते हैं तो प्रोफेशनल स्टडीज में फर्स्ट ईयर में सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। सेकेंड ईयर में स्पेशलाइजेशन हो जाता है कि आपको ये पढ़ना है, और फिर आपकी ब्रांच हो जाती है, स्पेशल ब्रांच होती है, फिर वहां सुपर स्पेशलिटी होती है। पहले मेरी समझ में नहीं आता ये सुपर स्पेशलिटी क्या है भाई। स्पेशल तो ठीक है, सुपर स्पेशल क्या है? स्पेशल में भी स्पेशल। लेकिन दरअसल ये विशेषीकरण है जो किसी भी चीज को बहुत सूक्ष्मता, माइक्रो लेवल पे
चीजें करता है। हम मैक्रो पर से शुरू करते हैं, फिर माइक्रो में जाते हैं। तो ये हमारी जो प्लानिंग की बात है वो हमें ध्यान रखनी चाहिए। मित्रों, समय बहुत कम बचा है, 4-5 मिनट शेष है। मैं जल्दी जल्दी बातें अपनी पूरी कर लूं, क्योंकि 10 मिनट 5 मिनट तो ब्रजेश जी ने ही ले लिया। तो प्लानिंग फॉर मैक्सिमम रिकॉल जो है ये भी कम है, उसके लिए भी हमें नियोजन करना चाहिए, क्योंकि जो मैक्सिमम रिकॉल होता है वह हमेशा बहुत कम समय तक रहता है। जब हमारी चरमावस्था पर हम पहुंचते हैं अपने व्याख्यान की, वो कम होता है। और इस मैक्सिमम रिकॉल की जो अवधि है, ये आप ध्यान रखेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन इनपुट मिलता है वो हमारे 2 तरह की मेमोरीज में जाता है। वन इज अवर लॉन्ग टर्म मेमोरी, अनदर इज शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो इट इज फॉरगॉटन, बट इन लॉन्ग टर्म मेमोरी the information which is there, you remember it for a longer time. If I'll ask that, do you remember any incident of your childhood? Definitely you can tell something which is related with the age of 3 years or 4 years. Still it is in your memory. तब आप उसे बता रहे हैं। हो सकता है आपको याद हो कि आपने पहली आइसक्रीम कब खाई, हो सकता है आपको याद हो कब आपने पहली पिक्चर देखी, हो सकता है आपको याद हो कब पहली यात्रा आपने की, हो सकता है याद हो कि कब पहली बार आपने कोई शैतानी की, वगैरह वगैरह, या कोई अच्छा काम किया, कब स्कूल गए, क्योंकि वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में गया। ऐसे ही जब हम व्याख्यान दें तो ध्यान रखें कि चीजें इस तरह कम्युनिकेट हों जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाए। जो इंफॉर्मेशन का इनपुट होता है, इट इज स्टोर्ड इन ट्रेनी शॉर्ट टर्म मेमोरी जनरली, which has a limited capacity, and it can retain information for perhaps 5 to 30 seconds only. इतनी छोटी होती है हमारी मेमोरी, 30 सेकंड से अधिक हम चीजों को सामान्यतः याद नहीं करते, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन है जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाते हैं, और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाते हैं वो लंबे समय तक याद रहते हैं। तो आप चीजों को इस तरह प्रस्तुत कीजिए तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाए। जैसे और कुछ याद रहे न रहे, आज का ये इंसिडेंट आपको याद रहेगा कि ये हुआ था, forever you will remember it. Definitely I am saying. Yes, sir. Yes. And you can also Yes, sir. use it. Yes, sir. So, because it is something different ना, वो जो चल रहा था उससे बिल्कुल अलग था, तो बड़े याचित भाव में बोल रहा था, मैं अध्यापक हूँ भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ तो रहम करो, हैं 50 रुपए। अगर वो कहता कि हमारी तनख्वाह तो आपसे बहुत कम है, क्यों रहम करो भाई, और कह ही रहा था वो कि हमारा तो काम है आरटीओ का, तो पहले देखना चाहिए था। बहरहाल, तो जो मेजर पॉइंट्स हैं उसको अगर हम एम्फसाइज करेंगे जहां जहां संभव होगा, तो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा, और तब हम अपने पूरे व्याख्यान में जिसको हम चरम कहते हैं, मैक्सिमम रिकॉल टाइम, दैट इज फ्रॉम 20 to 30 minutes होता है। When you start your lecture, if you have almost 40-45 minutes in your hand, then after 20 minutes you reach up to the height, and you can maintain it for 20-30 minutes more. Then you come down up to towards the conclusion. तो ये चीजें ध्यान में रखिए, और जब भी हम स्ट्रक्चरिंग करें अपने लेक्चर की, तो एक डायग्राम है जो यहाँ पर है और आपको दिख नहीं रहा है। इस डायग्राम में बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए जो भी हम लेक्चर शुरू करने चाहते हैं। सो फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन पार्ट, दैट टुडे आई विल टीच दिस वन, these points should be covered. Then second part is major points. ये मुख्य बिंदु हैं, उनको आप एलोबरेट करेंगे। Then after you will go in the detail. डिटेलिंग होगी, उसकी व्याख्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। And the fourth point is summary part. जब आप समरी पार्ट में कंक्लूड करेंगे चीजों को, तब आप बेहतर ढंग से अपनी सारी बात कह पाएंगे। विजुअल एड्स का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप कोई फिल्म दिखा सकते हैं, इफ यू हैव द फैसिलिटी,
ये जरूरी नहीं कि कक्षा में फैसिलिटी हो, तो लिंक्स दे सकते हैं, वो बच्चे अपने मोबाइल पर अपने घर में उस लिंक पर कोई शॉर्ट फिल्म हो सकती है, उसका कोई बड़ी फिल्म हो सकती है, कुछ तस्वीरें हो, उनकी लिंक्स आप दें, बिकॉज ऑलवेज विजुअल एड्स अट्रैक्ट एंड होल्ड अटेंशन and explain words without saying anything. It illustrates the relationship between the subject. So this is a part of consolidate learning. In that way, you can prove yourself a good teacher. There are several other things, but I have already crossed 3 minutes, almost 2 minutes more I took, and you have to listen another lecture. So I'll send my presentation, you will get it. And if you prepare these things accordingly, I hope it will be beneficial for you. आप सबके लिए लाभकर होगा, ऐसा मेरा सोचना है, गलत भी हो सकता है कुछ चीजें आपके सचमुच उपयोगी लगी हो। हाँ दिवाकर जी, you want to say something? Yes, sir. Sir, I just want to ask you one thing, sir. If you have to suggest, sir, any 3 books that one has to read in his lifetime, kindly suggest, sir. No, it depends on your interest. I don't know your interest. What is your interest? Yes, sir. If Sir, I say mysticism as well as mysticism, there is one book you can write the name, and the name of that book is Many Life, Many Masters. Yes, sir. Okay. Yes. So Many Life, Many Masters, I'll also like to tell others that this is a story of a doctor, psychologist, who wrote this book. And it is about his patient. And he wrote the book, and in that book, he says that this patient has more than 80 reincarnation. पुनर्जन्म है, और हर जन्म में ये जो लड़की है, ये किसी न किसी रूप में उस लेखक से जुड़ी रही है। कभी वो लड़की के रूप में जन्मी है, कभी वो पुरुष के रूप में जन्मी है, कभी वो एशिया में जन्मी है, कभी वो यूरोप में जन्मी है। और जब वो उसको बहुत सारे सपने आते थे, इट्स अ रियल स्टोरी, उसको बहुत सारे सपने आते थे, और जब वो सपनों को लेकर के उस साइकोलॉजिस्ट से मिली तो उसने उस पर अध्ययन करना शुरू किया, और तब उसके बारे में उसने लिखी है। तो इट इज एन इंटरेस्टिंग बुक, यू कैन रीड इट। दैट इज माय ओपिनियन। ओनली लव इज रियल भी इनकी है सर। इनकी 6 बुक है या 5 बुक है, एक कंपेंडियम है सर, ब्रायन वीस की। जी जी, तो आप तो जानते ही हैं, विद्वान है, कोई बात ही नहीं है। विद्वान नहीं सर, नहीं, अरे भाई, मैं उसको सही अर्थों में कह रहा हूँ, गलत अर्थों में नहीं कह रहा हूँ। आप उसको पॉजिटिवली लीजिए ना, कि भाई आपने वो सारी पुस्तकें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इट मीन्स दैट आई एम ऑल्सो करेक्ट, कि ये मिस्टिसिज्म से जो जुड़ी बात मैंने आपको बताई वो सही है। मैंने बाकी पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं, ये पढ़ी है मैंने, और मुझे लगा कि ये एक अच्छी किताब है, पढ़ना चाहिए, है ना। कुछ किताबों के नाम मैंने आपको बताए, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अगर आपका लिटरेचर में रुझान है तो किस विषय में, अंग्रेजी में है या हिंदी में है, इंग्लिश लिटरेचर है, तो इंग्लिश की तमाम सारी किताबें हैं, जिस ओर आपकी रुचि है उसको आप पढ़ सकते हैं। बच्चों को बड़ी पसंद आती है एलिस इन वंडरलैंड, आप पढ़िए। हमारा रिसर्च भी मैजिकल रियलिज्म पे है सर। हाँ, तो आप एलिस इन वंडरलैंड आपने पढ़ी होगी, है ना, और आपको पता होगा कि उसको लिखने वाला मैथमेटिशियन था, ही वाज अ प्रीस्ट। सर ऐसे इंग्लिश में सर इस तरह के सर काफी सारे ऐसे आते हैं जो जिन्होंने इस तरह से 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी भी जिन्होंने लिखी इस तरह से, जो है वो भी मैथमेटिशियन थे। मतलब जी, इट्स वेरी स्ट्रेंज थिंग सर, कि इस कैलिबर के कुछ जो कह लोग रही हैं। Sir, 7 types of ambiguity, William Gibson. यस। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ये सब निर्भर करता है आपकी रुचियों पर, कि हमारी रुचि क्या है। अगर मेरी रुचि जैसे लिटरेचर में है, तो वर्ल्ड लिटरेचर की तमाम सारी चीजें आप पढ़िए, चाहे हमारे हिंदुस्तान का लिटरेचर हो, इट इज ऑल्सो ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश, या मूल भाषा में हो या हिंदी में हो, तो अच्छा होगा। हाँ शिवनाथ जी, आर यू सेइंग समथिंग? जी सर। सर प्रणाम।
हाँ मैं नमस्कार। शिवाजी प्रसन्न आपका छात्र हूँ, बीएचयू से ही पढ़कर आया हूँ, किसान वाह। पीजी कॉलेज में हूँ। हिंदी विभाग से मेरा पीएचडी हुआ था श्रीनिवास पांडे सर के अंडर में। चलिए बहुत अच्छी बात है। आज आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा, आपका व्याख्यान सुन करके। चलिए शंकर जी धन्यवाद। जी सर। तो अब इस सत्र को यहीं विराम देते हैं, और किसी को और कोई जिज्ञासा हो तो